So let's get started, guys. So today itself, I have started a target SBI, IPPS, and RRB current affairs batch on an academy itself. And again, the 10 batches are lined up. Okay, 10 batches मेरे lined up है ये सारे एग्जाम्स के लिए, जिसमें मैं कंप्लीट आपका जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन करा रही हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. At 4 p.m. you can join an academy plus class for current affairs, and from 14th onwards you will have the comprehensive batches for banking, financial and economic awareness as well. ठीक है. सो डेली करंट अफेयर्स का क्लास स्टार्ट हो चुका है. इसके साथ स्टैटिक अवेयरनेस और बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आपका स्टार्ट होगा. ये सारे मेरे अपकमिंग बैचेस रहेंगे, जिसमें आपका पूरा जनरल अवेयरनेस का पोर्शन मैं कवर करा रही हूँ फॉर ऑल दी बैंक एग्जाम्स. So this is going to be a basic to advanced batch, guys, for all the banking examination, and in the next 3 to 4 months no session will be repeated, and so you have to go for a long term subscription if you have planned to prepare yourselves for any bank exam. Okay, so under the bank category itself you can go for a subscription choosing the category. Okay, so here onwards my batches will be long term, whether it is SBI or RBI. ओके जो भी मैं सब्जेक्ट हैंडल कर रही हूँ लॉन्ग टर्म बैचेस में चलेंगे, गाइस. सो मेक श्योर दैट यू गो फॉर अ sufficient subscription of at least 1 year. Okay, so while going for it, you can use this code Ruhi Live or Ruhi 10. Any of the code you can use to get a 10% discount. ठीक है. एवरी संडे मैं कंपाइलेशन फ्री क्लास में लूंगी 11 बजे से 12:30 बजे तक के जो भी हमारे डेली करंट अफेयर्स क्विज होती है उनका वीकली कंपाइलेशन एवरी संडे 11 to 12:30 फ्री क्लास में रहेगा. ठीक है, गाइस. So you can just search my name on an academy and you can enroll for the live classes. Very good evening, all of you. So let's get started with the session. So this is my Telegram channel. You can just join by searching my name, General Awareness by Ruhi Sheikh on Telegram. Okay, so let's get started with the very first question. You have to answer in the comment. What is the new timeline for which emergency credit line guarantee scheme has been extended by the government? गवर्नमेंट द्वारा नया टाइमलाइन आपको बताना है ECLGS 3.0 के लिए जुलाई 31, जून 30, मई 31 या फिर अप्रैल 30. So you have to type in the comment what is the new timeline for emergency credit line guarantee scheme. Come on, answer in the comment section. The new timeline for emergency credit line guarantee scheme has been extended by the government, which is option B, 30th of June. Okay, good evening Pranjal. 30th of June आपका नया टाइमलाइन रखा गया है गवर्नमेंट द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत, जो जून 30th 2021 तक के नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए अप्लीकेबल रहेगा. So or till such time that an amount of rupees 3 lakh crore is sanctioned under this scheme. अब इस स्कीम ECLGS स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ का जो सैंक्शन अमाउंट है वो टाइम तक के ये स्कीम अप्लीकेबल रहेगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स. सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम or the date of the deadline, new timeline of the ECLGS is 30th of June. Next question, RBI has extended the timeline for processing recurring online transaction. What is the new timeline to adhere to these rules? हाल ही में RBI ने रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का जो प्रोसेसिंग टाइमलाइन है उसको एक्सटेंड किया है. सो अभी जो नए रूल्स हैं, नया टाइमलाइन है, ये कब तक का है? What is the new timeline to adhere to the rules? 30th of April, December 31st, September 30th या फिर August 31st? Very correct. The answer is 30th of September. Manish and Jay have answered it. RBI has extended the timeline for processing recurring online transactions and the new timeline is September 30. The Special Forces Exercise जिसका नाम है वज्र प्रहर 2021 रिसेंटली कंडक्ट की गई थी इंडियन नेवी द्वारा विथ नेवल फोर्स ऑफ विच कंट्री? इनमें से किस कंट्री के नेवल फोर्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए वज्र प्रहर 2021 स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है? आंसर
सिंगापुर, फ्रांस, यूएस या फिर श्रीलंका। So Vajra Prahar 2021 maximum students are going for option C. Very correctly answered by all of you. United States, Indian Navy and Naval Force of US ने मिलकर वज्र प्रहर स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से और 2 सवाल निकल के आ रहे हैं। दिस इज विच एडिशन? 11वां एडिशन रहा है इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज का, जिसका नाम आपसे पूछ लेते हैं वज्र प्रहर 2021 का। कंडक्ट हुआ था स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल विच इज लोकेटेड एट बाकलो इन हिमाचल प्रदेश। ओके गाइज, द डिटेल क्वेश्चन इज इवन आस्क्ड, सो रिमेंबर द नेम ऑफ द एग्जैक्ट प्लेस। बाकलो इन हिमाचल प्रदेश पे ये इंडो यूएस का 11वां एडिशन कंडक्ट हुआ था। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, इस बुक के ऑथर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। देयर इज ऑल्सो अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस। सो 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के ऑथर कौन है? राहुल बग्गा, विनोद काबरी, विपिन गाबा या फिर अजीत अंजुम। Again I repeat, who is the author of 1232 kilometer the long journey home? So maximum correct विनोद कापरी। ओके, विनोद कापरी इसके ऑथर है। याद रखना है बुक का नाम 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। अगला सवाल है 104 साल पुराना अमेरिकन नेटिव बेवर्ली क्लेरी हु पास्ड अवे, ओके, was what was her profession? So हाल ही में इनका निधन हुआ है। 104 साल के अमेरिकन नेटिव बेवर्ली क्लेरी। इनका प्रोफेशन आपको बताना है। जर्नलिस्ट रही है, सिंगर, एक्ट्रेस या फिर ऑथर रही है। बेवर्ली क्लेरी। इंटरनेशनल ऑब्ituary से सवाल है। सो ऑप्शन the most appropriate answer here is author. Okay, so basically the renowned American writer, okay, author of children's and young adult fiction. हाल ही में इनका डेथ हुआ है at the age of 104. Okay, so never the age is asked in your examination, whether they ask you the profession or the place. So American author रही है बेवर्ली क्लेरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकैपिटलाइजेशन फंड के तहत 14,500 रुपए 4 स्टेट ओन्ड लेंडर के लिए फंड किया है। सो ये जो अमाउंट है कैपिटल इन्फ्यूजन का, ये गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया है 2020-21 के लिए फॉर बैंक्स। ओके, बैंकों के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन के फॉर्म में ये कितना अमाउंट अनाउंस किया गया है? So what amount of capital infusion was announced by the government for banks in 2020-21? 30,000 crores, 25,000, 15,000 या फिर 20,000 crores? So recently the government has infused recapitalization fund of 14,500 in 4 state-owned lender and the amount of capital infusion announced by the government for banks is rupees 20,000 crore. very important. Recapitalization bonds के तहत बैंकों को कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, ओके, बैंकों में कैपिटल इन्फ्यूजन के तहत गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए हैं। ओके, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। ओके, सो टू इन्फ्यूज कैपिटल इन दी बैंक, बैंकों में कैपिटल इन्फ्यूज करने के लिए 20,000 करोड़ गवर्नमेंट द्वारा इन्फ्यूज किए गए हैं। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इन्फ्यूज 14,500 करोड़ इन 4 स्टेट ओन्ड लेंडर्स, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक। ओके, सो बेसिकली बाय इशूइंग नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड्स यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं जो कि इंटरेस्ट जनरेट नहीं करते। गाइज, बॉन्ड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं। तो अब ये गवर्नमेंट बैंकों को बॉन्ड के फॉर्म में पैसा दे रही है जो बॉन्ड पे इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा। सो ऐसे जो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं
zero coupon bonds. Okay, zero coupon bonds, the bonds which do not bear any interest, rather they are issued on discount. अब आप कहोगे मैम ये जीरो कूपन बॉन्ड्स है तो इस पे प्रॉफिट कैसे होगा, तो ये आपको डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, ऐसे बॉन्ड्स आपको डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर टर्म्स फाइनेंशियल अवेयरनेस से लेके मैं अपने बैंकिंग के बैच में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, so you have to remember these things are asked in your interviews also. What are recapitalization bonds, and these type of bonds which are issued by the government for infusing capital infusion, okay, are what kind of bonds? So you should know they are zero coupon bonds. This infusion will complete the government's total capital infusion of totally 20,000 crore in the public sector banks for the current financial year 2020-21. Sorry guys, आंसर देख के आपको, who has been elected as the new chairperson of Standing Conference of Public Enterprise? शीना अवस्थी, रीना माधवी, सरिता गुप्ता या फिर सोमा मंडल, इनमें से नई चेयरपर्सन बनी है स्कोप की स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक एंटरप्राइज। सोमा मंडल इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो स्कोप का फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखना है आपको। Soma Mandal has been elected as the chairperson of SAIL, State Owned Steel Authority of India. Steel Authority of India ने अपने नए चेयरपर्सन की घोषणा की है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए। सोमा मंडल है एंड प्रदीप कुमार जो है, प्रदीप कुमार दास CMD है IREDA के, who has been entrusted vice chairman's role after the biennial election. Okay, so the vice chairman of IREDA is Pradeep Kumar Das, whereas Soma Mandal as the chairperson of SAIL. Unicarbon card co-branded credit card यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था ऑन रूपे प्लेटफॉर्म ऑफ NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन कोलैबोरेशन विद व्हिच कंपनी? इनमें से किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिकार्बन कार्ड जो कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है इसे लॉन्च किया है? NTPC, HPCL, ONGC या फिर SAIL? So Unicarbon card is launched by Union Bank of India in collaboration with HPCL. Very correct, Yamini, Manish, Rachna, very very correct. The answer is HPCL. Okay, so HPCL or the Bank of Union Bank of India, both of them has collaborated to form this carbon card, Unicarbon card. हेडक्वार्टर ऑफ स्कोप, अभी हमने देखा था अपॉइंटमेंट ऑफ सोमा मंडल एज द चेयरपर्सन ऑफ स्कोप. सो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्कोप? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस. स्कोप की हेडक्वार्टर्स कहां पे है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर जयपुर? आंसर इन द कमेंट गाइस. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स? वेरी करेक्ट, यामिनी, अक्षता and Rachna. Very good. Delhi as your correct answer. Next, revised estimated growth rate of India as per the fiscal 2021 as per World Bank. World Bank के मुताबिक फिस्कल 2021-22 के लिए इंडिया का ग्रोथ रेट कितना प्रेडिक्ट किया गया है? 10.8%, 11%, 9.55 या फिर 8.24%? Please don't try to spam the comment section, otherwise you can be, I can block you. So the answer is 10.1%. Okay, 10.1% याद रखना है, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर याद रखना है आपको. वर्ल्ड बैंक हैज रिवाइज्ड द GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया बाय 4.7%. ओके, 4.7% पॉइंट्स से 10.1% कर दिया गया है 2021-22 के लिए, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इन प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ. ओके, इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कंजम्पशन में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने के कारण यहाँ पर 10.1% GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया है.
Next question, estimated amount pegged by the government to borrow from markets in the first half of 2021. I am sure this might be asked in one of your examination. Short question है ये, एक examination में जरूर पूछा जाएगा. Can you tell me? Estimated amount pegged by the government to borrow from market. 7.24 lakh crore, 8.15 lakh crores, 10.50 lakh crores या फिर 9 lakh crores. Don't know. Okay. Yamini is going for A, Akshata for B, Manish don't know. Okay. Let me tell you 7.24, 7.24 lakh crore. The estimated amount the government will borrow from market. Market से government 7.24 lakh crores borrowings कर सकती है first half of fiscal year 2021-22 के लिए. याद रखिए गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है मार्केट बोरोविंग्स गवर्नमेंट कितना कर रही है. नेक्स्ट. Okay, so basically this borrowing is obviously to revive the economy hit by coronavirus. COVID-19 के वजह से जो भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है, इससे रिवाइवल के तौर पे गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग्स कर सकती है 7.24 लाख करोड़ की. अगला है हु हैज बीन अवॉर्डेड दी सारस्वती सम्मान 2020. के शिवा रेड्डी, सारन कुमार लिम्बाले, वासुदेव मोहे या फिर सितांशु यशस चंद्रा. Who has been awarded the Saraswati Samman for 2020? The correct answer is very nice. The option B, Snehal Manish Akshata, very correct. The answer is शारन कुमार लिम्बारे. नोटेड मराठी राइटर है डॉक्टर शारन कुमार लिम्बारे, जिन्हें यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है फॉर सरस्वती सम्मान 2020. इन्हें सिलेक्ट किया गया है प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड के लिए अपनी बुक सनतान के लिए. याद रखना आपको किस बुक के लिए इन्हें चुना गया है. सनतान इस बुक के लिए इन्हें चुना गया है. एक और चीज यहाँ से पूछ सकते हैं कि ये किस लैंग्वेज से राइटर है. मराठी. ओके, सो नोटेड मराठी राइटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन. रवि किशन, अनु कपूर, नमित अरोरा या फिर ध्रुव राठी. इनमें से किसने इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन को टाइटल ऑथर किया है? रवि किशन, अनु कपूर, नमित अरोरा या फिर ध्रुव राठी. ऑथर ऑफ द बुक इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन इज नमित अरोरा. ओके, नमित अरोरा द्वारा ये बुक लिखी गई है. याद रखना है, बुक का नाम भी आपसे पूछ सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. The next question, which bank in India has inked a loan agreement with Japan Bank for International Cooperation to extend loans to supply chain of Japanese automobile industry? जापान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लोन एक्सटेंड करने के लिए, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक सेक्टर में लोन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ने एक पैक्ट या फिर एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ. सो ये कौन सी बैंक है इंडिया की जिसने ये अग्रीमेंट में एंटर किया है? कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पीएनबी है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? या ऑल ऑफ यू आर वेरी करेक्ट. द आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. याद रखना हमें किसके साथ ये मेमोरेंडम किया गया है. स्टेट बैंक ने मेमोरेंडम किया है JBIC, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन. ये मेमोरेंडम जो है ये जो अग्रीमेंट है, लोन अग्रीमेंट, ये $1 बिलियन का है जिसके तहत लोन सप्लाई किए जा रहे हैं जापानीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स S&P ग्लोबल रेटिंग्स की हेडक्वार्टर्स कहाँ पर सिचुएटेड है? कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, मुनिच जर्मनी या फिर लंदन यूके में? Where is the headquarters of Standard & Poor's Global Ratings situated? Very correct. Yes, the answer is New York, USA. Okay, USA में इसकी हेडक्वार्टर्स है. So that was for the day guys. आज के लिए इतने क्वेश्चन है, सारे स्टैटिक क्वेश्चन जो भी रिलेट कर रहे हैं करंट अफेयर्स से हम कवर कर चुके हैं. लेट मी नो योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन. कितने स्टूडेंट्स ने सारे जवाब सही दिए? आई डोंट थिंक सो सारे स्टूडेंट्स ने जवाब सही किए हैं. ओके, सो ट्राई टू रिवाइज दिस मल्टीपल टाइम्स. दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस ऑफ द डे. ओके,
दिन के 15 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो इसी चैनल पे रोज़ 6 बजे मैं कवर करूँगी। और आपका वीकली कंपाइलेशन स्पेशल क्लास में 11 बजे एवरी संडे होगा, 11 AM एवरी संडे होगा। ठीक है, इसी के साथ आप मेरे बैचेस के लिए एनरोल कर सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लस। Okay guys, and while going for the subscription, make sure that you use the code RUHILIVE to avail a 10% discount. In case you have any query regarding the subscription, you can just drop me a message on my Telegram channel, and hope to meet you in the next session. Till then, thank you, bye bye, and keep revising. God bless you. Bye.